Hello, my dear students. Welcome in the last segment of the chapter, The Modern World. The main highlights of today's segment are Introduction of Reformation Movement, Different Causes of Reformation, Role of Martin Luther, the Impact of Reformation on Society, and the Counter-Reformation. So let's understand about the Reformation movement. Reformation movement is also known as Protestant Reformation. Before going to explore about the Reformation movement, we must know the religious condition of medieval Europe. As we already know that in medieval period, the religious life of the people in Europe was dominated by the Roman Catholic Church. The church was very powerful and the Pope was on absolute authority. Who was Pope? Pope was the head of the church. He was so powerful that no one could question or oppose him as well as his teachings. Those who did were accused of blasphemy and labeled as heretics. What is heretics? A person who differs in opinion from established religious principles. In short, we do understand that not ready to obey the decisions of the Pope. As a result, they faced severe punishments. Moreover, the Roman Catholic Church had the ultimate control over the education. As a result of this, officials of the church became very corrupt and church became very wealthy. अगर हम रिफॉर्मेशन मूवमेंट की बात करते हैं तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है. इसे समझने से पहले हमें मेडिवल यूरोप की रिलीजियस लाइफ के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम मेडिवल यूरोप के रिलीजियस लाइफ के बारे में बात करें तो चर्च बहुत ही डोमिनेंट था. चर्च का आधिपत्य हर क्षेत्र में था, स्पेशली एजुकेशन के क्षेत्र में, और चर्च ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी था सोसाइटी में. राजा भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे. अगर कोई भी उसके डिसीजन को मानने से इनकार करता था तो उसे धर्म विरोधी बना दिया जाता था, कठिन पनिशमेंट दिया जाता था. और इसका नतीजा ये हुआ कि कॉमन पीपल के अंदर एक भय आ गया. कोई भी चर्च की अथॉरिटी के अगेंस्ट नहीं जाता था. चर्च के अधिकारी करप्ट होते गए और चर्च की संपत्ति बढ़ती गई. Did you know what was the aim of Reformation movement? Let's understand the main purpose of Reformation movement. Reformation movement was started to reform the Roman Catholic Church, and the aim of this movement was questioning everything that was based on blind faith. Religious reform चर्च के करप्शन को रोकने के लिए हुआ और लोगों में एक नई चेतना को जगाने के लिए कि जो भी विश्वास उनके अंदर है चर्च के प्रति वो क्यों है और क्या वो सही है. Causes of the Reformation movement. We have to know different causes of the Reformation movement. Corruption and moral degradation in Catholic Church was the major cause. The emergence of Renaissance inculcated values of secularism and humanism, which challenged the church authority. Emphasis was laid on having personal relation with God and religion rather than ritualistic one. And the spirit of rationalism and inquiry led people to judge the doctrines of the church against logic and reason. जैसा कि हम जानते हैं नई डिस्कवरीज हुई, नई खोजें हुई और उसके कारण लोगों की तार्किक क्षमता बढ़ी. अब वो चर्च के प्रति, उसके विचारों के प्रति अपना विचार प्रकट करने लगे और जो उनको लॉजिकल नहीं लगा उसको मानने से इनकार करने लगे. रेनेसेंस की वजह से लोगों में जागृति आई और उन्होंने चर्च के बजाय भगवान से पर्सनल रिलेशन पर ज़्यादा जोर दिया. द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड स्प्रेड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ रेनेसेंस फॉर एंड वाइड. और इसी टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन आग में घी का काम किया. क्रिटिसिज्म ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च. द कैथोलिक चर्च वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग करप्ट एंड इमोरल. The clergy failed to meet the church's spiritual needs and rather indulged in worldly pleasure and claimed political power. रोमन चर्च को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया. मेन कारण इसका ये था कि रोमन चर्च में करप्शन बढ़ गया था और उसके कारण लोगों में चर्च के प्रति श्रद्धा कम होती गई. द चर्च स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग इंडल्जेंसेस और सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन बाय गॉड फॉर सिंस एज मीन्स ऑफ सॉल्वेशन और door to heaven. Catholic Church also levied various taxes such as tithe, which were compulsory for all Christians in Europe. इससे ज़्यादा चिंताजनक विषय ये था कि क्षमा पत्र बेचे जाते थे लोगों को
विश्वास दिलाया जाता था कि ये आपको मुक्ति दिलाएगा। इतना ही नहीं, कैथोलिक चर्च ने तरह तरह के टैक्स लगाए कॉमन पीपल के ऊपर। राइटिंग्स ऑफ अर्ली रिफॉर्मर्स। Throughout the history of Catholic Church, there were many reformers within the Roman Catholic tradition. In 1300 and early 1400s, John Wycliffe of England and Jan Hus of Bohemia had advocated reforms in the church. जो चिंतक थे, जो विचारक थे, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में चर्च के रिफॉर्म को मुद्दा बनाया, जैसे कि जॉन वैक्लिफ जो इंग्लैंड के थे और जैन हस बोहेमिया के थे। उन्होंने चर्च के रिफॉर्म को एडवोकेट किया। राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स। डिक्लाइन ऑफ मीडिवल फ्यूडलिज्म लेड टू द इमरजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स अक्रॉस यूरोप हु चैलेंज द चर्च सुप्रीमेसी। फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होने के कारण मेडिवल टाइम पीरियड में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रूलर्स का अभ्युदय हुआ और उन्होंने ओपन चैलेंज दिया चर्च की अथॉरिटी को। दे वॉन्टेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द होली रोमन एम्पायर एंड इट्स कंट्रोल। वो चाहते थे कि वो होली रोमन एम्पायर से अलग हो जाएं। Role of Martin Luther. Martin Luther, a German monk, was instrumental in bringing about the Reformation movement. Martin Luther जो जर्मन के मॉन्क थे, वो रिफॉर्मेशन मूवमेंट लाने के लिए उत्तरदायी हैं। Luther raised objections regarding several practices of Catholic Church and supremacy of Pope. मार्टिन लूथर ने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस किए जो चर्च की प्रैक्टिस के ऊपर था और चर्च को सुप्रीम अथॉरिटी मानने के लिए था। He was particularly shocked by the sale of indulgences. सबसे बड़ी चिंता का विषय सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन बाय गॉड था, जो लोगों को बेचा जाता था धर्म के नाम पर। In 1517, Luther wrote his 95 thesis and pinned it on the door of local church. 1517 ईस्वी में 95 रिफॉर्म के पॉइंट्स लिखे और इसको लोकल चर्च के दरवाजे पर चिपका दिया। Luther advocated that salvation could be achieved by faith alone. लूथर ने कहा कि मुक्ति केवल हमें विश्वास के द्वारा ही मिल सकती है। बाइबल वॉज द ओनली सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड फाइनल अथॉरिटी, और बाइबल ही केवल सत्य का स्रोत है और ये फाइनल अथॉरिटी है, न कि चर्च। सून थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ द 95 थीसिस वर प्रिंटेड एंड स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ जर्मनी। मार्टिन लूथर के क्रांतिकारी विचारों की बहुत सारी कॉपियां बनाई गई और उसको बांट दिया गया जगह जगह जर्मनी में। His actions began the Reformation. अब लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगे चर्च की अथॉरिटी के ऊपर। A movement for religious reform. By 1520, Luther began to mark a definite break from the Catholic Church. He called upon Christian churches to reject the Pope's authority. उन्होंने क्रिश्चियन चर्च को पोप की अथॉरिटी मानने के लिए इनकार करने को कहा। The church was outraged by the Luther's actions and demanded that he either withdraw his views or risk excommunication. इस बात पर रोमन कैथोलिक चर्च बहुत ही आक्रोशित हुआ और उसने इमीडिएटली लूथर को अपने विचारों को वापस लेने के लिए कहा। लूथर स्टूड fearless and refused to withdraw his remarks. But लूथर को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो अपने विचारों पर अडिग रहे। लूथर was charged with the heresy and excommunicated by the Pope. उसका रिजल्ट ये हुआ कि लूथर को कम्युनिटी से निकाल दिया गया। Later on the direction of Pope, the German Emperor Charles V summoned Luther for his trial. At the trial, Luther stood firm and thus was declared as an outlaw and heretic. मार्टिन लूथर को दोषी घोषित किया गया एंड एज अ पनिशमेंट ऑल हिज बुक्स वर बर्न, और उनको पनिश करने के लिए उनकी बुक्स को जला दिया गया। बिग ट्विस्ट हैड कम इन द स्टोरी when many ruling groups in Germany started supporting Luther and saw this as an opportunity to break away from the Roman Catholic Church. कहानी में ट्विस्ट आया जब बहुत सारे जर्मन नेशंस ने लूथर के विचारों को सपोर्ट करना शुरू किया क्योंकि वो रोमन कैथोलिक चर्च से अलग होना चाहते थे। By his return to Wittenberg in 1522, many of his ideas were already being put in practice. A separate national German church, the Lutheran Church, was established free from the control of a Roman church. Its followers came to be known as Protestant. लूथर के विचारों का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा कि एक अलग चर्च एस्टैब्लिश हुआ जर्मन में, उसका नाम लुथेरियन चर्च रखा गया और इसके फॉलोअर्स को प्रोटेस्टेंट कहा गया। There were violent clashes between the Catholic and Protestant. The kings who wished to escape the dominance of the Catholic Church started
supporting the Protestant and persecuted the Catholic in their areas. कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट दोनों समूहों में वायलेंस स्टार्ट हो गया और जो राजा रोमन कैथलिक चर्च के प्रभाव से मुक्त होना चाहते थे, उन्होंने अपने राज्य के कैथलिक्स को पनिश करना शुरू कर दिया, परसिक्यूट करना शुरू कर दिया। लूथर्स आइडियाज वर पॉपुलराइज्ड इन स्विट्जरलैंड बाय द अल्ड्रिच ज्विंगली एंड इन फ्रांस बाय जेन कैल्विन। लूथर के विचारों को पॉपुलराइजेशन स्विट्जरलैंड में उल्ड्रिच ज्विंगली ने और फ्रांस में जेन कैल्विन ने दिलाई। इन इंग्लैंड किंग हेनरी VIII फॉर्मली ब्रोक अवे फ्रॉम द कैथलिक चर्च एंड एस्टैब्लिश्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हेनरी VIII जो इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने अपने को रोमन कैथोलिक चर्च से अलग कर दिया और एक नया चर्च ऑफ इंग्लैंड को एस्टैब्लिश किया। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा? द रिफॉर्मेशन हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट थ्रू इट्स रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स एंड सेट द स्टेज ऑफ मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। रिफॉर्मेशन मूवमेंट का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा और इसने मॉडर्न यूरोप के लिए स्टेज तैयार किया। द चर्च स्प्लिट इनटू 2 फ्रैक्शंस। अब चर्च 2 भागों में बट गया, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। देयर वॉज रिलीजियस टर्मोइल इन मेनी स्टेट्स विच ऑफन लेड टू अ वॉर विद इन द स्टेट्स एज वेल एज बिटवीन देम। ये बहुत सारी जगहों पर कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट फॉलोअर्स में संघर्ष शुरू हो गया। There was religious intolerance and persecution of the Protestant in Catholic states and Catholics in Protestant states, leading to the migration to the other areas. इसका प्रभाव ये पड़ा कि कैथलिक राज्यों में प्रोटेस्टेंट को प्रताड़ित किया जाता था और प्रोटेस्टेंट राज्यों में कैथलिक्स को प्रताड़ित किया जाता था, और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये हुआ कि माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। Reformation also eventually led to the evolution of nation states. और रिफॉर्मेशन की वजह से नेशन स्टेट्स का अभ्युदय हुआ। एज सेवरल स्टेट्स ब्रोक फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द कैथोलिक चर्च एंड दीज रूलर्स took complete charge of their empires. This laid the foundation of nation states based on the common culture, language और history governed by a ruler. और इस तरह से नेशन स्टेट्स का अभ्युदय हुआ जहाँ पर कॉमन कल्चर को फॉलो किया जाता था। काउंटर रिफॉर्मेशन। व्हाट इज काउंटर रिफॉर्मेशन? In response to Protestant Reformation movement, many Catholics called for a movement within the Roman Catholic Church to reform itself. Reformation movement का सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि बहुत सारे रोमन चर्च में सुधार कार्य प्रारंभ हुए and this movement came to be known as Counter Reformation, और ये movement Counter Reformation के नाम से प्रसिद्ध हुआ। The important leaders of this movement were reformers who took actions to reform and renew the church from within. और बहुत सारे समाज सुधारक और विचारक इसके भागीदारी बने। The church reformed itself by going back to its foundational tenets of spirituality. Catholic Church sent its missionaries around the world to bring people within the folds of Christianity. और धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरीज को जगह जगह भेजा गया। They also attempted to stop the spread of Protestantism. So in today's segment, till here only, I hope you understood the chapter properly. Thank you.